Assalamu alaikum. Today's topic is derivative of a vector. Derivative of a vector with respect to a scalar, जिसको सिलेबस में पैरामीटर भी लिखा है उन्होंने, स्केलर पैरामीटर। तो इसमें हम प्रोसीड करते हैं कि हम मानेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर है, कंसीडर a vector A which is a function of a scalar t, say time। फिजिक्स में ज़्यादा स्केलर जो है टाइम होगा। That is we have A is a function of t। So in this case A is a, हम ऐसे लिखेंगे A is actually वेक्टर A जो है it is a function of time। इसमें अगर t चेंज होता है, if t changes from say t to t plus delta t, then there will be a corresponding change in vector A। So the vector A changes from say initially it is vector A, then it changes to A plus delta A। In other words, delta t is change in t and delta A is change in vector A। तो इसमें ये आपको पता है कि जो t है, t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो a है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे t चेंज होता है तो a चेंज होता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें, if we take an example of this, we can write say let me use this color। If we take example, we have say velocity of a falling body is equal to u plus gt। velocity of a falling body, इसमें अगर हम माने कि u 0 के बराबर है, u plus g, u and g are vectors, u अगर 0 है, we let a body release a body from some height, u is 0, then v is equal to gt। now g is a constant, g is a constant, so v जो है it depends on t। t is independent variable और v जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लिख सकते हैं here v जो है v is a function of time, v of t। so ऐसे ही यहाँ पर हमने लिखा a is a function of time। for example, velocity of a falling body is a function of time। यहाँ t कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मगर अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल लें फॉलिंग बॉडी का, for a falling body under gravity। anyway, now let's come to the mathematics। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि डेल्टा ए जो है, डेल्टा टी जो है वो टाइम टी में जो चेंज आ रही है वो है बताती है, और डेल्टा ए जो है इट इज चेंज इन द वेक्टर फंक्शन ए। तो ए भी एक फंक्शन है, इट्स अ वेक्टर फंक्शन और ये डिपेंडेंट फंक्शन है, और जो टी है टी इंडिपेंडेंट फंक्शन है और ये स्केलर फंक्शन है। अब इन दो को अगर हम रेशो लें तो रेशो वुड बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज रेशो। So this is the ratio of
these two changes, and if we take the limit, then delta t को हम बहुत कम करते हैं tending to 0. Now this becomes derivative of a with respect to t. So this is the derivative of a vector with respect to a scalar. dA by dt is equal to limit of delta t tends to 0 delta a by delta t. This can be written as more explicitly. What is delta a? Delta a is a of t plus delta t minus a of t. ये पहले जो a का वैल्यू था, और जब हमने टाइम को इंक्रीज किया उस वक्त a का वैल्यू जो आ गया, दैट इज a of t plus delta t डिवाइड बाय टाइम डेल्टा t, चेंज इन टाइम डेल्टा t. इसमें अगर हम लिमिट देते हैं डेल्टा t अप्रोच टू 0, तो दिस थिंग इज द सेम एज दिस थिंग. डेल्टा a इज एक्चुअली a of t plus delta t minus a of t, and delta t is the same. So this is the derivative of a vector with respect to a scalar. So इस केस में हम कहेंगे कि जो वेक्टर a है, here vector a is differentiable, is we say vector a is differentiable. तो हमने इसको ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, और जो प्रोसेस है, the process is called as differentiation. ये हमें पहले ही पता है, this process differentiation, finding derivative of vector of a function. तो यहाँ पर ये वेक्टर फंक्शन है. अब इसमें हम ये तो पहले ही हमें पता था, ये स्केलर केस में हमें पहले ही दिस इंफॉर्मेशन. अब सिर्फ हमने ये वेक्टर में एक्सटेंड किया. ये आपको पहले स्केलर में अगर ये कंपेयर करके दिखाऊं, यहाँ फॉर स्केलर, अगर स्केलर के साथ आप कंपेयर करें तो फॉर स्केलर आपने 11th क्लास में किया है. ये हैव से dx by dt, it is limit of delta t approaches to 0, it is delta x by delta t, same thing. And this is actually this delta x is x of t plus delta t minus x of t, and in the denominator you have the same thing. You have थोड़ा मुझे लगता है कि दिख नहीं रहा होगा आपको कहीं पे, यहाँ पे. So I think I can write it again. Limit of delta t approaches to 0, ये है आपका x of t plus delta t minus x of t whole divided by delta t. So this is your dx by dt. So ये स्केलर की डेफिनेशन है. अब हमने इसको एक्सटेंड किया है यहाँ वेक्टर के लिए. अब इसमें वेक्टर में जो है फिजिकल एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, फिजिकल एग्जाम्पल, तो अगर आप देखेंगे, अब हम लिखते हैं dv by dt. हमारे पास एक एक्सप्रेशन है फॉर एग्जाम्पल. So what is dv by dt? It is the limit of delta t approaches to 0 delta v by delta t. Well, this is change in velocity vector and this is change in time. So ratio of these changes. So what is this can be written as delta t approaches 0. V of delta v is v at t plus delta t minus v at t and divided by delta t. And by the way, this is the definition of acceleration. And you have, for example, if you take another example, rate of change of momentum, dp by dt. What is dp by dt? It is, you can write it as in limit form, limit delta t approaches to 0 delta p vector by delta t, which is same as limit of delta t approaches to 0, and it is p of t plus delta t minus p of t divided by delta t. And by the way, you know this is the definition of force. This is Newton's second law.
So now let us move to, we'll add another page here. So now we'll do derivative of product. Now we'll talk about derivative of products. प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना हो उसमें क्या करना है, तो इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं. से प्रोडक्ट ऑफ, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव हमें लेना है, तो क्या करेंगे. से फॉर एग्जांपल लेट वी हैव के ए, और इसमें डेरिवेटिव ऑफ स्केलर और वेक्टर जो हैं वो दोनों जो हैं डेरिवेटिव ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, इस सिचुएशन में बोथ आर फंक्शंस ऑफ ए स्केलर. वो स्केलर पर डिपेंड करते हैं, से स्केलर टी पर वो डिपेंड करते हैं. तो इस केस में हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे. तो से के ए हमारे पास है एक प्रोडक्ट, तो के का हमें डेरिवेटिव निकालना है. वायर एक्चुअली इन दिस केस के जो है, के भी है फंक्शन ऑफ टाइम. मैं ऐसे लिखता हूं के इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये जो वेक्टर ए है दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम. सो के इज एक्चुअली के इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ए इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो ऐसे में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इस केस में प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम. डी बाई डी टी ऑफ के इंटू ए, तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला, यूवी फॉर्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे. आप क्या कीजिए, पहले के को डेरिवेटिव निकाले. इट वुड बी डी के बाई डी टी. के इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डी के बाई डी टी, एंड ए जो है ए ऐसे ही रहेगा. एंड देन विल ऐड टू इट. अब के को आप ऐसे ही रखेंगे और ए का डेरिवेटिव साथ में रखेंगे, डी ए बाई डी टी. सो दिस विल बी हाउ विल डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वेयर बोथ वन इज स्केलर अनदर इज वेक्टर एंड बोथ आर फंक्शंस ऑफ टाइम. नाउ लेट अस टेक another case. Dot product of two vectors. Now we have dot product of two vectors. Both are functions of a scalar t. तो इस केस में हम क्या करेंगे. सो वी हैव ए एंड बी. इस केस में हमारा प्रोडक्ट है ए डॉट बी. तो इसमें भी सिचुएशन ये है कि ए भी है फंक्शन ऑफ टाइम, ए वेक्टर भी फंक्शन ऑफ टाइम टी है, या टाइम हम एग्जांपल हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल. तो बी जो है बी भी टाइम की फंक्शन है. तो इस केस में अगर हम इनका ए डॉट बी का डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या प्रोसेस रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी. इसमें भी वही यूवी फॉर्मूला अप्लाई होगी. इसको आप ऐसे कर लिख सकते हैं, बेटर होगा. पूरे पर ऑपरेट कर रहा है, डी बाई डी टी पूरे प्रोडक्ट पर ऑपरेट कर रहा है. सो इसमें आप पहले फंक्शन को ऐसे रखेंगे, या पहले ही इसी को इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. आप लिखेंगे डी ए बाई डी टी पहले का डेरिवेटिव, दूसरी फंक्शन जो है वो ऐसे ही, और यहाँ बीच में डॉट लिखना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट बी प्लस. अब पहले फंक्शन को ऐसे ही रखना है, ए वेक्टर को ऐसे रखना है, डॉट इसके साथ होगा दूसरे का डेरिवेटिव. बिल्कुल यूवी फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हम स्केलर में यूज कर रहे थे. अलबत्ता यहाँ ख्याल रखना है कि वेक्टर फंक्शन है. सो पहले का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी डॉट बी, दूसरे ऐसी ही फंक्शन, पहली फंक्शन ऐसी रखनी है और दूसरे का डेरिवेटिव बीच में डॉट ऐसे ही रहेगा. अब हम लेंगे इफ वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो सी केस हमारा
क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट है और ये एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वही बोथ आर फंक्शंस ऑफ टाइम, स्केलर टी। तो यू हैव इन दिस केस ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी में खास बात क्या है कि ये वेक्टर ए भी फंक्शन ऑफ टाइम है, फिर क्रॉस बी भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है, इसका डेरिवेटिव करना है ए क्रॉस बी का, तो क्या करेंगे इस केस में? ये हमारा है डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इस पूरे का डेरिवेटिव में निकालना है। तो इसमें भी यही होगा, पहले का आप डेरिवेटिव निकालिए डी ए बाई डी टी, क्रॉस दूसरा ऐसे ही रहेगा, दूसरा वेक्टर, प्लस पहला वेक्टर ऐसे रखो जैसे है और क्रॉस विद द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड। एंड नाउ विल मूव अहेड, एक और एग्जांपल लेंगे इसमें, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है वो, ऑल और फंक्शंस ऑफ स्केलर टी, यानी तीनों जो हैं इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट बने, तीन का प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक खास शेप की फंक्शन होती है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी। यहां अगर हम ब्रैकेट ना भी रखें, ये पता है कि ये जो डॉट, पहले यहां डॉट नहीं है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर है, फिर उस वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। अगर हम कहें पहले हम ए डॉट बी लें फिर क्रॉस सी लें, तो वो गलत ऑपरेशन होगा, वो कोई ऑपरेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर हम ए डॉट बी लेंगे डेट विल बी ए स्केलर, और फिर हम स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहां पर बाय डिफॉल्ट वी नो इट इज बी क्रॉस सी, पहले बी क्रॉस सी। एनीवे, इस केस में भी जो ए है, ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डॉट बी वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, क्रॉस सी वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये मामला है यहाँ पे। तो ऐसे केस में ऐसे हम क्या करेंगे, कैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे देना है। सो डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, इस पूरे पर ये ऑपरेट कर रहा है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं। तो पहले यहाँ डॉट प्रोडक्ट पर हमें पहले क्या करना है, पहले हम डॉट को खोलेंगे, यानी हम इसको एक फंक्शन मानेंगे क्योंकि एक वेक्टर है, और उसको दूसरे फंक्शन मानेंगे क्योंकि बी और सी मिला के क्रॉस प्रोडक्ट लेके एक और वेक्टर बनेगा। सो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, पहले को ऑपरेट करेंगे डी ए बाई डी टी, डॉट ऐसे रहेगा, और ये दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे रहेगा बी क्रॉस सी। तो अगर आप चाहें तो ब्रैकेट रख सकते हैं, वो ऐसी जरूरत नहीं है, इट वुड बी अंडरस्टूड। प्लस होगा कि आप ए वेक्टर जो है वो ऐसे ही रहेगा, डॉट विद डी बाई डी टी ऑफ बी क्रॉस सी। तो अब इसमें जो है यहां अंदर जो है बी क्रॉस सी का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट है जो ऊपर हमने किया, वो ये वाला जो हमने किया, ये यहां पर इसमें अप्लाई होगा। सो दिस विल बिकम, ये पहला जो इसमें टर्म है, पहली टर्म, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इट विल बी लाइक दिस। यहां अगर मैं ब्रैकेट ना भी लिखूं जरूरत नहीं है, क्योंकि बी क्रॉस सी पहले करना है, अंडरस्टूड है। उसके बाद जो बचेगा वहां वेक्टर बनेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लगेगा डी ए बाई डी टी के साथ। तो अगर आप चाहते हैं क्लैरिटी के लिए तो आप रख सकते हैं ब्रैकेट, प्लस
a dot of now this thing. Now this is the derivative of क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसका हमें रूल पता है. एक पहले b का हम डेरिवेटिव लेंगे db by dt क्रॉस c ऐसे ही प्लस, और पहले b को ऐसे ही रखेंगे क्रॉस c का डेरिवेटिव. तो ये सारा हम ब्रैकेट में रख सकते हैं. तो अब इसमें a डॉट जो है पहले इस पर लगेगा a डॉट, फिर a डॉट इस पर लगेगा. तो ये दो टर्म्स बनेंगे और ये टर्म जो है ये ऐसे ही पहले है. सो इट विल बिकम dA by dt डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट dB by dt क्रॉस c. यहां आप ब्रैकेट चाहे तो लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तब भी अंडरस्टूड है. पहले ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर यहाँ जो वेक्टर बनेगा ये मिला के क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है तो उसका a के साथ डॉट लगेगा. एनीवे प्लस नाउ a डॉट विल बी एक्ट ऑन दिस. डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विल बी टेकन विद b क्रॉस dc by dt. यहाँ आप क्लैरिटी के लिए ब्रैकेट रख सकते हैं. सो यू हैव थ्री टर्म्स. सो दिस इज दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसी तरह हम ले सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. लेट मी लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू एंड फाइनली विल कम टू अनदर. तो ई में रखता हूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी इसी तरह प्रोसीड होगा. ये आपके लिए काम है. एंड नाउ फाइनली वी हैव ये भी है आपका प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर वायर स्केलर इज ए कांस्टेंट, यानी वो टी पर डिपेंड नहीं करता है. So you have in this case vector a and a scalar phi. Now this phi is a constant. ये t पे डिपेंड नहीं करता है. a जो है so phi is a constant. a जो है वो t पर डिपेंड करता है. तो इस केस में हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? Let us finish with this. So हम लिखेंगे here d by dt of phi a. तो इसका डेरिवेटिव होगा, पहले phi का डेरिवेटिव कीजिए d phi by dt. अगर हम लिखेंगे uv फॉर्मूला d phi by dt, अगर हम uv फॉर्मूला यूज करेंगे लिखने के हिसाब से d phi by dt, तो दूसरा जो वेक्टर a है वो ऐसे ही रहेगा प्लस, अब phi को ऐसे ही रखो. अब a का डेरिवेटिव आएगा dA by dt. Now since phi is a constant, its derivative will be 0. Therefore we are left with only phi dA by dt. तो अब इसमें ये करना नहीं है आपको, ये मैंने दिखाने के लिए दिखाया. सो आप लिखेंगे कि आपको याद रखना है d by dt ऑफ phi a. phi constant है वो बाहर आएगा. सो यू हैव डायरेक्टली टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. phi constant बाहर आएगा, d by dt of dA by dt और d by dt of a. So with this I close today's topic. Thank you very much. All the best.